Dear students, today we are going to discuss a new topic named diffraction of light. Question is this: what do you mean by diffraction of light? Then we used to say कि as we know light propagates along a straight line path. हम लोग कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर प्रोपागेट करता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट इट प्रोपागेट्स along a straight line path. If any obstacle comes in its path, then it casts shadow, right? Let us suppose here you have a source of light, here you have a point source of light, and here we have put an obstacle. As it is a point source, so it will emit light in each and every direction. When it will propagate, when it will move along forward direction, then here it will be obstructed. Here again it will be up to this very point, it will be obstructed. Up to this point it will be obstructed. Beyond this, no obstruction. Beyond this, no obstruction. It means that in this very region there will be shadow. There will be geometrical shadow. Right? Complete darkness होना चाहिए. But according to rectilinear propagation of light यह होना चाहिए. But really what do we observe? लाइट जो होता है इस रीजन में इंटर कर जाता है. जो ज्योमेट्रिकल शेडो वाला रीजन है इस रीजन में इंटर कर जाता है, इस रीजन में इंटर कर जाता है. इट मीन दैट यह जरूर है कि लाइट यहाँ पर कॉर्नर के पास बेंड हुआ है. लाइट यहाँ कॉर्नर के पास बेंड हुआ है, राइट? एंड दिस वेरी phenomenon of bending of light around the corner of a small obstacle. One more thing, यह तो हमने obstacle का बात बताया. When take another example, let us suppose here you have point source of light, and here in the path of light there is a small hole, right? Then according to propagation, straight line propagation of light should follow this path. Light should follow this path. ये obstruct हो जाएगा, obstruct हो जाएगा, obstruct हो जाएगा, obstruct हो जाएगा, obstruct हो जाएगा. Means this should be a region of geometrical shadow. This should be region of geometrical shadow. It means that when light passes through a small hole, means aperture, or when any obstacle comes in the path of the light, right? Then bending of light takes place at the corner. Bending of light takes place lies इस ज्योमेट्रिकल शेडो वाले रीजन में इंटर कर जाता है, राइट? एंड दिस वेरी phenomenon of bending of light around the corner of a small obstacle or aperture means hole, and its consequent spreading into the region of geometrical shadow. कॉर्नर के पास मुड़ जाता है और जो ज्योमेट्रिकल शेडो वाला रीजन में है उस फैल जाता है. दिस होल फेनोमेना इज नोन एज diffraction of light. This very whole phenomena is known as diffraction of light, right? Then we used to say, what is diffraction phenomena? Then simply we used to say it is phenomenon of bending of light around the corner of a small obstacle or aperture, and its consequent spreading into the region of geometrical shadow is known as diffraction of light, right? एंड वन मोर थिंग, केवल यही नहीं होता है, बेंडिंग ही नहीं होता है. ज्योमेट्रिकल शेडो में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं. इट मीन दैट इंटरफेरेंस आल्सो टेक्स प्लेस. देन वी कैन से diffraction is the phenomenon of bending of light around the corner of a small obstacles or aperture, and formation of alternate bright and dark fringes is known as diffraction of light. Here alternate bright and dark fringes form. It means that
It means that interference phenomena also takes place. It means that diffraction is related with bending of light around the corner of a small obstacle or aperture, and happening of interference phenomena means happening of superposition phenomena, right? See here, see first figure. Here you have point source of light S, and here you have a narrow aperture, एक छोटा सा होल है. लेट अस सपोज यू हैव सम मटेरियल, उसमें एक छोटा सा होल है. देन अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऐसे पास करेगा, पास करेगा, पास करेगा, राइट. अब लाइट इस रीजन में नहीं जा सकेगा, जो लाइट यहाँ जाएगा यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन रखें तो लाइट को इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में कंप्लीट ब्राइट होना चाहिए, और इस रीजन में डार्क होना चाहिए. मीन्स दिस रीजन शुड बी ज्योमेट्रिकल शैडो. बट व्हाट डू वी ऑब्जर्व? लाइट रीचेज इन दीज टू सम ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन आल्सो. ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में भी पहुंच जाता है, और तो और इसमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस भी बनाता है. दिस वेरी phenomenon of bending of light around the opening is known as diffraction of light. Come over another example. Let us suppose here you have source of light. ये मान लीजिए कि आपका source of light है, और यहाँ पर एक छोटा सा obstacle AB है, right? As it is point source of light, it will propagate light in each and every direction. लेकिन जो obstacle की तरफ बढ़ेगा तो इससे obstruct हो जाएगा, इधर पहुँचेगा, इधर पहुँचेगा. अगर यहाँ स्क्रीन रखे हुए हैं, तो इस रीजन में लाइट पहुँचेगा, लाइट इस रीजन में पहुँचेगा, इस रीजन में लाइट एकदम नहीं पहुँचना चाहिए. मीन्स दिस रीजन शुड बी ज्योमेट्रिकल रीजन. बट व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर? हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं? लाइट रीचेज इन दिस रीजन आल्सो, मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, राइट. And we get alternate bright and dark fringes, means superposition principle also takes place. Superposition of waves also takes place, and it is your interference. Sorry, it is your diffraction, right? Then question is this: is there any relation between side of aperture or obstacle with formation of diffraction phenomena, with happening of diffraction phenomena? क्या डिफ्रैक्शन फेनोमेना होने के लिए, मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट होने के लिए, मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट के बाद सुपरपोजिशन फेनोमेना होने के लिए, मीन्स अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज बनने के लिए, क्या अपर्चर के साइज, ऑब्स्टकल के साइज से कोई रिलेशन है? Then we used to say yes. The diffraction effect is more pronounced, is more applicable. The diffraction effect is more pronounced, more applicable, more happening if the size of the obstacle or obstacle is of the order of wavelength of the light. Means जिस वेवलेंथ का लाइट आपने यूज़ किया है उसके साइज के बराबर का जो है ऑब्स्टकल का साइज है या होल का साइज है, देन एंड ओनली देन डिफ्रैक्शन फेनोमेना विल बी ऑब्जर्वेबल. बट जनरली व्हाट हैपन्स, जो ऑब्स्टकल का साइज होता है, जो होल का साइज होता है, दे आर वेरी वेरी लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. इट मीन दैट नॉर्मली वी डोंट ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन फेनोमेना. For observing diffraction phenomena, size of the obstacle should be very very small, right? See here in figure number 1, here we have plane wave fronts. All are in phase and they are going towards the slit, right? होल के तरफ जा रहा है. जब यहाँ पर पहुँचेगा, then what we should say? Here all are in phase, and according to Huygens principle, each and everyone will behave like a new source of light. और जब न्यू सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, देन व्हाट डू वी आर गेटिंग हियर? यह जो हमको जो वेव फ्रंट अब जो मिलेगा, दे आर इन दिस शेप.
वह इस शेप में मिल रहे हैं। बट वेन जैसे जैसे साइज का होल जो है कम करते जाते हैं, जैसे जैसे साइज का होल कम करते जाते हैं, देन वी गेट दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट। दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट ऐसा क्यों हो रहा है, जरा सा सुनेंगे ध्यान से। क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल यू आर सेइंग कि ईच एंड एवरी पॉइंट विल एक्ट लाइक सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। तो अगर वह एक पॉइंट सोर्स बनेगा देन दे शुड फॉर्म अ स्फेरिकल वेव फ्रंट और नॉट, दे शुड फॉर्म a spherical wave front and here we are getting a spherical wave front and due to which a spreading into each and every direction is taking place. It means that here diffraction phenomena is more pronounced, more applicable, not applicable, more visible, right? It means that when size of the hole will be less comparable to wavelength of light used, at only at that very time diffraction phenomena will be more visible, will be more noticeable, right? Now come over types of the diffraction. There are two types of diffraction. यह जो डिफ्रैक्शन होता है दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज योर फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। इस फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अभी आपने क्या देखा, देयर शुड बी ए सोर्स, देयर शुड बी स्लिट मीन्स होल एंड देयर शुड बी आल्सो अ स्क्रीन, जिस पर कि हमको लाइट मिलेगा मुझे जो है, राइट। देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के केस में सोर्स और स्क्रीन स्लिट से बहुत करीब होता है। द सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड क्लोज टू द अपर्चर और द ऑब्स्टेकल, राइट। क्योंकि बहुत क्लोज होता है, इसका मतलब व्हेन यू विल हैव पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट देन इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल इन शेप। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वह स्फेरिकल इन वेव फ्रंट होगा। एंड नो लेंसेज आर रिक्वायर्ड, नो लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन। यह लेंस की यहाँ क्या जरूरत आ गई, हम लोग आगे देखेंगे इस बात को। And second diffraction is Fraunhofer diffraction. In this very diffraction, both source and screen are placed at large distances, means at infinite distances from the aperture or the obstacle. सबसे बड़ा दोनों में अंतर आ गया फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में। क्या, फ्रेजनल में सोर्स और ऑब्जर्वर स्लिट या ऑब्स्टेकल या अपर्चर से बहुत करीब होता है, इसमें बहुत दूर होता है, राइट। In this very case no lenses is required. इस केस में कोई लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन। क्यों कन्वर्जिंग लेंस का जरूरत पड़ता है? देन आई एम टेलिंग यू। एक पॉइंट और देख लो तब बता रहा हूँ। Sorry. And incident wave fronts are planar in shape. ये इसका क्या मतलब हुआ, तो जरा सा आइए देखिए तो हमने इसमें यह कहा सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द अपर्चर और द ऑब्स्टेकल। ये इसका कंडीशन है, राइट। देन व्हेन दे विल बी वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द स्लिट, अगर स्लिट से बहुत ज़्यादा दूर होगा, सी हेयर, लेट अस सपोज हेयर यू हैव स्लिट, या मान लीजिए कि यहाँ आपका स्लिट है, राइट। एंड हेयर यू हैव पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन यू विल हैव पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और स्लिट बहुत ज़्यादा दूर है, तो यह जो लाइट पहुँचेगा, यह जो लाइट चलेगा, जो यहाँ से लाइट चलेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत कम इंटेंसिटी, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत कम इंटेंसिटी स्लिट के पास पहुँच पाएगी। इट मीन दैट जो फ्रिंजेज मिलेंगे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, दैट विल बी वेरी वेरी डीम। सो फॉर गेटिंग इंटेंस बीम लेने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है लाइट को जो है इंटेंस बीम लेने के लिए
लाइट को हम लोग जो है ऑब्स्टैकल की तरफ या कह दीजिए होल की तरफ कन्वर्स कराएं, देन यू टेल मी विच लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, वी यूज टू से कन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो यह ढेर सारे रे को कन्वर्स कराएगा होल की तरफ, सो एज टू गेट more intense light, right? This is the use of lens here, right? और जब ऐसा होगा then you tell me the wave front which we will get, that will be plane wave front or not, right? Right? And after that आपका इसमें एक कंडीशन यह भी था, a screen over which we will observe diffraction pattern that is also very very far away from the slit। तो जब यहाँ से आपका जो वेव चलेगा, जब बहुत ऑल दीज विल एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो जो यहाँ पहुँचेगा स्क्रीन विच इज वेरी 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 फार अवे फ्रॉम यू, बहुत कम पहुँचेगा, इंटेंसिटी विल बी वेरी वेरी लेस, विल बी फेंट। सो हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स इंटेंस बीम पहुँचे तब हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। एंड फॉर दैट वी यूज़ अ convex lens, just after a little bit distance after hole, so that all diffracted beam should converge toward the screen, so that we can get intense beam of light. This is the reason of need of convex lenses, means converging lenses, in case of Fraunhofer diffraction, राइट। और जब लेंस यूज करेंगे तो जो वेव फ्रंट मिलेगा दैट विल बी प्लानर वन, राइट, दैट विल बी प्लानर वन। दैट्स व्हाई वी यूज टू से कन्वर्जिंग लेंसेस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन एंड इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लानर इन शेप, राइट। नाउ कम ओवर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। हम लोगों को जो पढ़ना है डिफ्रैक्शन, दैट इज डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। एक स्लिट होगा और वहीं पर हम लोग डिफ्रैक्शन का स्टडी करेंगे, राइट। उसी स्लिट के पास हम लोग डिफ्रैक्शन का स्टडी करेंगे, उसी से लाइट पास कराएंगे, बेंडिंग को देखेंगे, अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम लोग देखेंगे, राइट। दैट्स व्हाई टॉपिक इज डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, and really we have to study Fraunhofer diffraction. How? See the figure. See, dear students, here you have slit AB, right? Here you have source of light and it is your screen, right? जरा ध्यान से देखेंगे। It means, and as we are studying Fraunhofer diffraction, so there will be, so source and a screen both will be at far distance from the slit, or from the slit, from the obstacle, from the hole, right? Then as both are very very far away, there should be lenses of need of lenses, converging lenses, or not? And now see कि कैसे क्या कुछ फिनोमेना होता है। ध्यान से देखेंगे, एक दो बात और मैं बता दे रहा हूँ। साइज ऑफ द स्लिट, your size of the slit is small d, size of this slit is small d, and your screen is placed at a distance capital D, from the slit, right? Now see here is your source of light, as it is point source of light which is placed very very far away from the screen, from the slit, so it will produce a spherical wavefront, right? Then for making its wavefront plane, we have placed a converging lens in its path. Then after that we will get all planar waves, or planar wave fronts,
राइट। नाउ एक टॉपिक जो है हम लोगों का पढ़ना खत्म हो गया। जब हम लोग हाइगन प्रिंसिपल पढ़ते थे तो वहीं पर पढ़ते थे। जरा ध्यान से देखेंगे, हमने यह अभी तक पढ़ा है कि व्हेन देयर विल बी पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्स ऑफ लाइट, then and only then there will be phase difference, right? Now see here my dear, light is emerging from the source से लाइट चल रहा है। इस लाइट का पाथ इतना है, इस लाइट का पाथ इतना है, इस लाइट का पाथ इतना है, मीन्स देयर इज डिफरेंस ऑफ पाथ, so there should be phase difference, but we used to say all lights which will reach here they will be in phase. Question is how? यह कंटेंट दरअसल बात है हाइगन प्रिंसिपल के समय पढ़ना होता था, वहाँ पर यह खत्म हो गया है। आई एम टेलिंग यू, जरा ध्यान से देखना। एज इट इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, as it is point source of light and a point source produces a spherical wave front, और अगर वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है तो वेव फ्रंट का हमने डिफिनेशन ही पढ़ा है कि वो फेज में होता है, राइट। इट मीन दैट विल बी इन फेज, विल बी इन फेज, विल बी इन फेज, यहाँ तक पहुँचेगा फेज में रहेगा, राइट। अब उसके बाद जब यहाँ तक पहुँचेगा फेज में रहेगा, उसके बाद राइट यहाँ से निकलने तक, यहाँ तक फिर अपना ये फेज मेंटेन करता है, फिर अपना फेज मेंटेन करता है। जब इमर्ज करेगा देन अगेन ऑल विल बी इन फेज, और फिर फेज में रहेगा, मीन्स वेव फ्रंट्स आर प्लानर, सभी फेज में है, मीन्स यहाँ तक जो पहुँचे हैं ऑल विल बी इन फेज, ऑल विल बी इन फेज, राइट। अब यहाँ से जो स्लिट के पास पहुँच गया है, और जब वेव फ्रंट प्लेनर वेव फ्रंट स्लिट के पास पहुँचेगा, देन हमने अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल वी कैन से ईच एंड एवरी वन विल बिहेव लाइक अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, राइट। अब जब यहाँ से चलेगा देन सी, यह जो तुम्हारा स्लिट डी लेंथ का है, स्लिट डी लेंथ का है, हम लोग को यह कहना चाहिए in this very region according to rectilinear propagation of light, in this very region there will be complete brightness, and in this region bending of light will take place, diffraction phenomena will be observed, and superposition of principle will be observed, alternate bright and dark fringes we will get, right। अब जरा सा ध्यान से देखेंगे, इस रीजन में हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, राइट। अब इट इज प्लेस्ड वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, एंड यू आर सेइंग कि ईच एंड एवरी पॉइंट विल एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, तो यह फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, एंड वी विल नॉट गेट इंटेंस बीम इन दिस रीजन आल्सो। सो फॉर गेटिंग इंटेंस बीम इन दिस वेरी रीजन वी हैव प्लेस्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। अभी ये जो तीनों रे है इस पर नहीं सोचना, केवल ये तीनों रे पर सोचो। ये जो रे चल रहा है, हमने इसके पाथ में हमने एक इंटेंस बीम रख दिया है, तो क्या करेगा, ये सभी को कन्वर्ज करा के मीन पॉइंट पर पहुंचाएगा, यहाँ पर पहुंचाएगा, मीन्स एट दिस वेरी पॉइंट देयर विल बी ब्राइटनेस, देयर विल बी ब्राइटनेस, राइट। तो आप तो सिंगल रे थ्योरी के बेसिस पर कहेंगे कि जब रे ऐसे चलेगा, कन्वेक्स लेंस रखेंगे, कन्वर्ज कर करके यहाँ पर ब्राइटनेस बना देगा, अकॉर्डिंग टू रे थ्योरी, राइट। बट कम ओवर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, your plane wave fronts are proceeding along this direction। जब कन्वेक्स लेंस के पास पहुंचा है, राइट, अब जो है यहाँ पर रिफ्रैक्शन फेनोमेना होगा। रिफ्रैक्शन फेनोमेना के बाद आप देख रहे हैं कि रेज ऐसे भाग रहे हैं, इट मीन दैट अब जो रेज भागता है, जो वेव भागता है, they are always perpendicular to wave front, it means that here the wave front which we will get that will be a spherical one, and each and every one will be in phase। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर जो है यह पाथ डिफरेंस का अंतर आ रहा है, इसका पाथ कुछ है, इसका पाथ कुछ है, इसका पाथ कुछ है, बट हेयर उस पाथ डिफरेंस को मैनेज करेगा, फेज को मैनेज करेगा। अब जो ऐसे वेव निकल रहा है, वेव फ्रंट निकल रहा है, ऑल विल बी इन फेज, इट मीन दैट जितने भी सोर्स ऑफ लाइट यहाँ चलेंगे
they will reach here in phase and or are in same phase. So after superposition, here should be brightness. At point O should be brightness. It means that at point O we are getting interference, we are getting brightness, we are getting maximum intensity due to superposition of all waves which are originating from slit AB. Right? That's why at point O there should be brightness, there should be maximum intensity, and which is forming at central point. That's why this very point or this very brightness or this very maximum is known as central bright or central maximum. It means that at point O there will be central maximum. There will be central maximum. Right? Yes, we used to say all secondary wave fronts which originate from slit AB reach at point O are in same phase. They add constructively to produce a bright fringe known as central bright fringe. राइट और यह सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि सारे के सारे वेव जो इंटरफेरेंस हो रहा है एट पॉइंट ओ दैट इज इन कंस्ट्रक्टिव मैनर. राइट? नाउ कम ओवर वंस अगेन कम ओवर फिगर. तो यह तो रीजन हो गया, ब्राइट रीजन हो गया. अब आप यह कह रहे थे over the screen beyond bright region there will be bending of light. आप यह कह देंगे बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, मीन्स डिफ्रैक्शन फेनोमेना होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, वहाँ सुपरपोजिशन भी होगा. वी शुड गेट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज. लेट अस सपोज एट पॉइंट पी वी आर गेटिंग अ ब्राइट फ्रिंज. तो यहाँ होता क्या होगा? तो आप थोड़ी देर के लिए अगर लेंस को हटाते हैं तो आप कहेंगे सभी रे ऐसे पहुँच रहे होंगे, यहाँ पहुँच रहे होंगे. अगर पॉइंट पी पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है इट मीन दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी इज टेकिंग प्लेस. यही ना कह देंगे? राइट? यही कहेंगे. वन मोर थिंग, यहाँ पॉइंट पी पर जो रेज चल रहे हैं यहाँ से भी चल रहा है, यहाँ से भी चल रहा है. राइट? तो सबसे पहले आइए कि हम लोग एज पॉइंट पी एज योर स्क्रीन इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम स्लिट, तो रे जो है डाइवर्ज ना कर जाए, जो है बहुत ज़्यादा फैल नहीं जाए. मेरा जो बीम मिले जो है ब्राइट एंड जब ब्राइट फ्रिंज जो मिले वह डीम ना हो, उसके लिए हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे. पाथ में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और वह क्या करके कन्वर्ज करा के करके पॉइंट पी पर मुझे ब्राइटनेस देगा. राइट? तो अगर ब्राइटनेस देगा तो जरा सा देखिए. तो पहले आप ये मान के चलिए कि लेट अस सपोज पॉइंट पी is at an angular position theta with horizontal के साथ थीटा एंगुलर पोजीशन पर पॉइंट पी है. राइट? तो अब जरा सा ध्यान से देखेंगे. रे ऐसे चला, यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान से समझना बाबू. रे तुम्हारा जो है यहाँ से ऐसे चला है, पॉइंट पी पर पहुँचने के लिए यहाँ पर ऐसे चला है. राइट? हमने यहाँ पर क्या किया कि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया. और जब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तब क्या होगा? रे मेरा कन्वर्ज करेगा और यहाँ पर पहुँचेगा. रे ऐसे पहुँचेगा, इसका मतलब वेव फ्रंट जो मेरा बनेगा ऐसे बनेगा. स्फेरिकल वेव फ्रंट आर वी आर गेटिंग, इट मीन दैट ऑल विल बी इन फेज एंड अल्टरनेट. अंत में हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा. राइट? अब जरा सा ध्यान से देखिएगा. रिफ्रैक्शन के पहले
रिफ्रैक्शन के पहले जरा ध्यान से देखेंगे, रिफ्रैक्शन के पहले जब ऐसे जा रहा है तब तो माना जा रहा है कि फेज में है। आप ध्यान दीजिए केवल दो एक्सट्रीम इंड वाले रेज पर, एक इस रे पर एक इस रे पर। ये जो चल रहा है ऐसे चल रहा है, ये जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, राइट। यहाँ से जो वेव आपका चला था, जो फेज इसका था वही फेज इसका था, राइट। तो अगर प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं, अगर प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर ए वाला यहाँ पर पहुँचा है तो ए वाला यहाँ पर पहुँचेगा। अगर ए वाला इतना डिस्टेंस कवर किया है तो ए वाला भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। इट मीन दैट यहाँ तक फेज में होगा, और यहाँ से तो जो है डिफ्रेक्शन हो रहा है, फेज को मेंटेन करेगा। केवल पाथ डिफरेंस इतना का आ रहा है, यह जो पाथ डिफरेंस आ रहा है इतना का जो आ रहा है, इट मीन दैट यहाँ से जो रे चलेगा, ये जो रे चलेगा और ये रे चलेगा, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ पाथ ऑफ दिस मच अमाउंट। इस अमाउंट का पाथ डिफरेंस आएगा। तो हम लोग उसको कैसे मेंटेन करते हैं, सी हेयर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। यू ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर, राइट। क्योंकि आपने लेंस को यहाँ रख दिया। इमेजिन कीजिए कि पैरेलल रेज आर मूविंग, मीन्स माना जाएगा थोड़ी देर के लिए फेज में है, फिर यहाँ इंटरफेरेंस, फिर यहाँ जो है लेंस पर इंसिडेंट हुआ, फेज को मेंटेन करते रहेगा और फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्या आ रहा है, डिफरेंस इन पाथ जो आ रहा है ये वाला आ रहा है, एंड ड्यू टू दिस वेरी पाथ डिफरेंस, यही मेरा पाथ डिफरेंस आएगा। इन दोनों के बीच में इतने का पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच में यहाँ वाले के लिए अलग पाथ डिफरेंस, मीन्स अलग अलग के लिए अलग अलग पाथ डिफरेंस आएगा, लेकिन इतना ही पाथ डिफरेंस आएगा, राइट। हम लोग केवल अभी जो सोच रहे हैं, हम लोग केवल सोच रहे हैं ये दोनों एक्सट्रीम रे पर इंटरफेरेंस जो है, सुपरपोजिशन जो स्टडी करेंगे केवल ये दोनों रे से शुरू करेंगे, फिर ओवरऑल पर आ जाएंगे। It means that due to mixing of, due to interference of, due to superposition of all these waves, we are getting here brightness by the help of this very convex lens, right? तो अब जरा सा देखिए, तो यहाँ से जो रे चला है, यहाँ से जो रे चला है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, देन वी कैन से पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू दिस। एंड इफ दिस वेरी, हमने पढ़ा है कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेज एंड डार्क फ्रिंजेज, हमने यह पढ़ा है व्हेन पाथ डिफरेंस विल बी मल्टीपल ऑफ लैम्डा देयर विल बी ब्राइट फ्रिंज, एंड व्हेन पाथ डिफरेंस विल बी मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 देन देयर विल बी डार्क फ्रिंजेज, और नॉट, देयर विल बी डार्क फ्रिंजेज। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यह कह दूँ, अगर इन दोनों वेव के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का हो, देन वी कैन से देयर विल बी ब्राइट फ्रिंज। अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हो, देन देयर विल बी डार्क फ्रिंजेस, और नॉट। अब जरा सा आएंगे, नाउ कम ओवर कंटेंट वंस अगेन। नाउ फाइंड कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग। देन सी हियर, सपोज द सेकेंडरी वेवलेट्स आफ्टर डिफ्रेक्शन एट एन एंगल थीटा आर मीटिंग एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर मिल रहा है। इनिशियली सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्टेड फ्रॉम स्लिट, इनिशियली सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्टेड फ्रॉम स्लिट आर इन फेज, बट आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट पी दे पोजेस डिफरेंट फेज ड्यू टू difference in path length, due to difference in path length. Then what will be path difference, path difference होगा कितना, तो path difference निकालने के लिए drop perpendicular from point A over BP at point N। देखिए तो जरा सा, see here, draw perpendicular from point A over BP at N, and this will be path difference. Then what we should write, what will be path difference, means what will be value of Bn। अगर हम लोग कहते हैं path difference is P which is equal to Bn, तब Bn कैसे निकालेंगे, then come over this very right angle triangle, इस right angle triangle पर आइए, triangle ABN,
सी हेयर इट इज योर थीटा, तो अगर ये थीटा है ये होगा 90 माइनस थीटा। इट इज योर 90 डिग्री एट एन एंगल 90 डिग्री इज फॉर्मिंग, सो एट ए एंगल विल बी थीटा, क्योंकि जो बी के पास 90 माइनस थीटा हो रहा है तो ए के पास थीटा होगा। इट मीन दैट वी कैन से पाथ डिफरेंस बी एन will be equal to AB sin theta, will be equal to AB sin theta from this very triangle ABN, right? And AB is your D, so it will be equal to D sin theta. It means that path difference will be equal to D sin theta, right? It means that here path difference P is equal to D sin theta. अब पाथ डिफरेंस इतना आ गया तो अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें, ब्राइट फ्रिंजेज का डार्क फ्रिंजेज का हमने कंडीशन पढ़ा है। इट मीन दैट वी कैन से व्हेन पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ लेमडा देयर विल बी ब्राइट फ्रिंज, एंड व्हेन पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 देयर विल बी डार्क फ्रिंजेज, राइट? First of all, come over minima means dark fringes. For first dark fringe means for first minima क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ लेमडा, शुड बी मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। बट माय डियर सी हियर, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? पाथ फॉर फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेमडा। ये तो हमने ब्राइट वाला मैक्सिमा का कंडीशन लिख दिया। रियली यही पर यहाँ सबसे बड़ा ये है समझने वाली बात है। फॉर ब्राइट फ्रिंज जो होता है और जो डार्क फ्रिंज, दोनों का कंडीशन यहाँ इन्वर्ट कर जाता है। क्यों? ध्यान से सुनिए। हमने कहा है फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू लेमडा एंड पाथ डिफरेंस इज डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस इज डी साइन थीटा, एंड थीटा हमने मान लो पहला जो डार्क मिल रहा है उसका एंगुलर पोजीशन हमने θ1 लिया है। देन वी शुड राइट d sin θ1 विल बी इक्वल टू लेमडा, राइट? d sin θ1 विल बी इक्वल टू लेमडा, राइट? क्यों लिया है अभी बता रहा हूं। फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ गलती से कैपिटल डी लिखा गया है, इट इज योर स्मॉल डी। अब इस बात को हम लोग इसको स्टडी कैसे करते हैं, हम लोग लेमडा क्यों लेकर के चल रहे हैं। वंस अगेन कम ओवर फिगर, सी दिस वेरी फिगर। जब इंटरफेरेंस पढ़ते थे जिसमें हमने कंडीशन सुपरपोजिशन का बनाया था कि फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ लेमडा, उस समय मेरे 2 सोर्स होते थे, 2 स्लिट होता था और उससे लाइट मेरा निकलता था, राइट? बट हेयर वी हैव सिंगल स्लिट एंड विच इज ब्रॉड, यू कैन से थोड़ी देर के लिए ब्रॉड कह दीजिए, एंड रेज आर इमर्जिंग from each and every point. It means that we can say we have infinite sources or not. हमने infinite source ले लिया है। अब जरा सा देखिए तो हमने यह कह दिया है कि इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा है, राइट? अब जो है जरा सा मुझे यह बता दीजिए, दोनों एक्सट्रीम रेज का पाथ डिफरेंस लेमडा है। जरा सा सोचिए तो यहाँ से जो रे चलेगा और यहाँ से जो रे चलेगा और यहाँ से रे चलेगा, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हम इतना आ रहा है विच इज लेमडा हमने माना है, राइट? तो अब जरा सा मुझे यह बता दीजिए तो यहाँ और यहाँ के, अगर यहाँ और यहाँ के बीच का पाथ डिफरेंस इतना है तो यहाँ और यहाँ के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो जरा सा जब परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इट इज योर d/2, थीटा मेरा वही है, थीटा मेरा ये वाला वही है, लेकिन यह लेंथ मेरा AC जो है मेरा d/2 हो जाएगा।
सो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू dy 2 साइन थीटा 1। इसका मतलब जस्ट आधा हो गया, पाथ डिफरेंस जस्ट आधा हो जाएगा तो फेज क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस भी आधा हो जाएगा। इट मीन दैट इस रे के ए से जो रे चलेगा उसके रिस्पेक्ट में हर एक पॉइंट का फेज जो है अलग अलग होगा। अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हम लोग लेमडा ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 होगा, राइट। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 होगा। इससे थोड़ा सा पीछे नीचे आइए, पॉइंट ए से थोड़ा सा नीचे आइए, अब पॉइंट सी से भी थोड़ा सा नीचे आइए, तो अगेन पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, अगेन देयर विल बी पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 2। थोड़ा और नीचे आए, थोड़ा और नीचे आए, फिर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, थोड़ा और नीचे आए, थोड़ा और नीचे आए। इस तरह से AC पार्ट और CB पार्ट में थोड़ा थोड़ा नीचे आते जाएंगे और हमको दो दो रेज मिलते जाएंगे हुज पाथ डिफरेंस विल बी लेमडा बाय 2। और जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 आते जा रहा है तो जब पाथ डिफरेंस और उसी का मान इमेजिन करते हैं कि यहाँ सुपरपोजिशन हो रहा है, और जब सुपरपोजिशन हो रहा है पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 है, देन देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। There will be destructive interference and path difference. There will be destructive interference. It means that at point there will be darkness, there will be minima, right? तो इसके चलते हमने इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा लिया। जब लेमडा लिया तो इन दोनों बीच के बीच का पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा लेमडा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से जो दो रे चलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मिनिमा, फिर उसके नीचे चलते फिर मिनिमा, दोनों से नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे दोनों से सरकते जाइए जो है मिनिमा मिनिमा मिनिमा, ओवरऑल देयर विल बी मिनिमा। इट मीन दैट कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा विल बी पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लेमडा, राइट। पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लेमडा। इट मीन दैट d sin theta 1 will be equal to lambda, right? डिवाइड द स्लिट AB इंटू 2 हेल्प्स, AC एंड CB दो पार्ट में बांट दीजिए। पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स A एंड C विल बी लेमडा बाई 2। करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट इन अपर हाफ AC देयर इज ए पॉइंट इन लोअर हाफ CB विच हैज पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 2, right? It means that the wavelets interfere destructively to produce a minimum, right? To produce a minimum. So for first dark fringe condition should be d sin theta 1 will be equal to lambda. For second dark fringe, मान लीजिए सेकेंड डार्क फ्रिंज जो मिल रहा है उसका एंगुलर पोजीशन लेमडा 2 है, सॉरी थीटा 2 है, तो उसके लिए हम वो कहाँ मिलेगा, किस पोजीशन पर मिलेगा, तो हमने कह दिया वेन पाथ डिफरेंस, एक गलती मैंने यहाँ से कैपिटल D लिख दिया हूँ, इट शुड बी स्मॉल d। इट मीन दैट वेन पाथ डिफरेंस d साइन थीटा 2 विल बी इक्वल टू 2 लेमडा। जब 2 लेमडा देंगे फिर हम लोग सेकेंड डार्क के लिए सेकेंड ब्राइट वाला कंडीशन ले रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, अगर दोनों एक्सट्रीम जो मेरा स्लिट था A और B, अगर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस 2 लेमडा लेंगे तो बीच वाले का इसके और इसके वाले के बीच का कितना होगा, लेमडा होगा, और फिर इसके बीच का कितना होगा, लेमडा बाई 2 होगा। हम लोग इसको 4 पार्ट में बांट देंगे और स्टडी ऐसे करेंगे, एक रे यहाँ से चला एक रे यहाँ से चला, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाय 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर और नीचे आइए, थोड़ा नीचे दोनों में, फिर उन दोनों रे को लेके चलिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह से पूरा ये खत्म। एंड इन द सिमिलर मैनर इसका एक पार्ट इसका एक पार्ट इसका एक पार्ट इसका एक पार्ट, ये भी खत्म। इट मीन दैट होल एट पॉइंट P देयर विल बी डार्कनेस। दैट्स वाई वी यूज टू से for second dark there will be path difference should be equal to 2 lambda. In the similar manner we can say for nth dark fringe d sin theta n, मान लीजिए जो डार्क फ्रिंज बन रहा है वह जो है, जो स्क्रीन पर डार्क फ्रिंज बन रहा है
वह स्लिट के पास से एंगुलर पोजीशन थीटा एन पर बन रहा है, थीटा एन। देन वी कैन से फॉर nth डार्क फ्रिंज d sin थीटा एन विल बी इक्वल टू n लेमडा। देखेंगे पहला के लिए लेमडा, दूसरा के लिए 2 लेमडा, देन nth के लिए n लेमडा और नॉट, nth के लिए n लेमडा और n इक्वल टू पुट क्या करें, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, n के लिए n, सो n विल बी इक्वल टू स्मॉल n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट। एंड एज एक बहुत बड़ी बात जैसे हमने कहा था इंटरफेरेंस में, द इंटरफेरेंस फ्रिंज विच वी गेट दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर भी जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको जो मिलेगा, मीन्स डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, दैट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू सेंट्रल मैक्सिमा। इट मीन दैट एंगुलर पोजिशन विल बी वेरी वेरी लेस, इट मीन दैट थीटा विल बी वेरी वेरी लेस। So when theta will be very very less, then sin theta will tend to theta. It means that जब ये हो जाएगा, then we can say theta is very very small. So theta n will sin theta n will be equal to, so sin theta n so sin theta n will be equal to theta n, and we can say theta n will be equal to n lambda by d, n lambda by d। इट मीन दैट पहला के लिए थीटा 1 कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट डार्क के लिए थीटा 1 विल बी इक्वल टू n लेमडा डी, थीटा 2 इक्वल टू 2 लेमडा बाई डी, थीटा n इक्वल टू n लेमडा बाय डी, राइट। नाउ कम ओवर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन आ जाइए, तो जरा सा इसको देखिए। फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हम लोग जो लेंगे कि लेटस सपोज वह जो सेकेंडरी जो मैक्सिमा बन रहा है, फर्स्ट जो मेरा सेंट्रल पोजीशन पर बना है और दैट इज़ वेरी वेरी ब्राइट, उसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। और उसके बाद जो मैक्सिमा मिलेंगे उसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। क्यों सेकेंडरी मैक्सिमा, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमा बनेंगे देयर इंटेंसिटी विल बी वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू सेंट्रल मैक्सिमा। तो हम लोग अब कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लेमडा, लेकिन हम लोग ले रहे हैं 3 लेमडा बाई 2, मीन्स लेमडा बाई 2 वाला ले रहे हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ इंटरफेरेंस, मीन्स वेयर पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू पी इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। तो ऐसा कैसे होगा कि 3 लेमडा बाई 2 हम लोग लें जो है दोनों एक्सट्रीम इंड वाले स्लिट से, जो है ऐसे इसको देखिए, ये आपका स्लिट है और ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। Let us suppose it is your slit and it is your screen, means we are going to study जो यहाँ से रे चलेगा और यहाँ से जो रे चलेगा, जो कि पाथ डिफरेंस इतना होगा, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जो है 3 लेमडा बाय 2 है, राइट। तो इसको हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्यों हमने लिया, हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। 3 पार्ट में बांटेंगे तो अगर यहाँ और यहाँ के बीच का पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 है, तो यहाँ के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाई 2। तो जब लेमडा बाई 2, अब यहाँ से रे चलेगा पहुँचेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर उससे थोड़ा नीचे आइए, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर नीचे आए, फिर डिस्ट्रक्टिव, मीन्स यह दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, केवल यह पार्ट बचेगा। और यह पार्ट से जो लाइट चलेगा उसमें पार्ट डिफरेंस जो है लेमडा बाई 2 का नहीं आएगा, और जो यहाँ पर पहुँचेगा सुप्रीम पोज करेगा, उसके चलते देयर विल बी ब्राइटनेस, बट दैट वेरी ब्राइटनेस विल बी वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू होल ब्राइटनेस। जो सेंट्रल मैक्सिमम का ब्राइटनेस था पूरे के चलते था, लेकिन इसके चलते केवल एक 1/3 पार्ट से होगा, सो इंटेंसिटी विल बी वेरी वेरी लेस एंड बी यूज टू राइट। सी हियर, डिवाइड द स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। द पाथ डिफरेंस between 2 corresponding points of the first 2 parts will be lambda by 2. The wave fronts of these points will interfere destructively. The wavelets from the third part of the slit will contribute to some intensity, forming secondary maxima. Right? केवल थर्ड पार्ट से मेरा जो है सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। It means that the intensity of this very maxima will be much less than
that of central maxima, right? It means that for the first secondary maxima पाथ डिफरेंस मान लिया जाए जो मेरा बन रहा है सेकेंडरी मैक्सिमा वह बन रहा है डी साइन थीटा वन डैश पर बन रहा है। एंगुलर पोजीशन जो है मेरा है थीटा वन डैश है, राइट। एंगुलर पोजीशन लेटेस्ट सपोज जो हम लोग ले रहे थे एंगुलर पोजीशन यहाँ पर अगर मान लिया जाए मेरा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो एंगुलर पोजीशन जो ले रहे थे थीटा वन डैश पहला ब्राइट के लिए। देन पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू दिस विच इज योर डी साइन थीटा वन। जब यह 3 लैम्डा बाई 2 होगा देन इट विल फॉर्म and then we used to write d sin theta 1 dash will be equal to 3 lambda by 2। 3 कम क्यों लिया हमने 3 लैम्डा बाई 2, तो 2 लैम्डा बाई 2 तो कैंसिल किया एक दूसरे को, 1 लैम्डा बाई 2 जो बना सो बचा। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा जो सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है लेट अस सपोज एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट इज थीटा 2 डैश, तो उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा डी साइन थीटा 2 डैश। और ये कह रहे हैं कि व्हेन डी साइन थीटा 2 डैश विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2। 5 लैम्डा बाई 2 क्यों ले रहे हैं, तो दोनों एक्सट्रीम के बीच का जो है हमने जो पाथ डिफरेंस ये लिया है वह हमने लिया 5 लैम्डा बाई 2, राइट। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 5 पार्ट में बांटेंगे, तो 5 पार्ट में बांटेंगे तो लैम्डा बाई 2 सबका आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, केवल फिफ्थ पार्ट बचेगा जो कि कंट्रीब्यूट करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएगा एंड देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस ओवर द स्क्रीन, राइट। सिमिलरली फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा लेट अस सपोज उसका एंगुलर पोजीशन जो है थीटा एन डैश है, सो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा एन डैश विल बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। 2n+1 क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट के लिए हमने 3 लैम्डा बाई 2 लिया है, राइट। तो अगर n इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2+1 3 लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4+1 5 lambda by 2। So for nth secondary maxima we should write path difference d sin theta n dash will be equal to 2n+1 lambda by 2। And here theta n dash is very small because fringes are forming very close to central point, so sin theta n dash will be equal to theta n dash, and so theta n dash will be equal to, so theta n dash will be equal to, so theta n dash will be equal to 2n plus lambda by 2 by d, right। These are the different conditions of bright and dark fringes, right। अब जरा सा देखिए कि जो है सेंट्रल पोजीशन पर ब्राइट फ्रिंज बना है, राइट। सेंट्रल पोजीशन पर ब्राइट फ्रिंज बना है, उसके बाद पहला ब्राइट 3 लैम्डा बाई 2 कंडीशन लिया है, उसके बाद पहला ब्राइट है, फिर दूसरा ब्राइट है, तीसरा ब्राइट है, और इसके बीच में फिर डार्क भी तो बना था। जरा सा देखो तो इसका मतलब क्या कंडीशन मेरा बन रहा है, डार्क का कंडीशन क्या बना था, पहला डार्क का कंडीशन बना था थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 n लैम्डा बाई d। फर्स्ट डार्क का जो है कंडीशन बना था n लैम्डा बाई d, मीन्स एंगुलर पोजीशन शुड बी, डार्क का जो कंडीशन बना था थीटा 1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई d एंगुलर पोजीशन, एंड ब्राइट का जो कंडीशन बना था थीटा 1 शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2d, मीन्स लैम्डा बाई d 1.1d। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा अगर यह स्लिट है और यह स्क्रीन है, ये सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर मेरा बन रहा है, तो यहाँ से एंगुलर पोजीशन लैम्डा बाई डी पर अगर मेरा डार्क बन रहा है तो 1.5 लैम्डा बाई डी पर जाकर के ब्राइट बनेगा। मीन्स सेंट्रल मैक्सिमम के बाद पहला डार्क, देन पहला सेकेंडरी ब्राइट, देन सेकेंड डार्क, एंड देन सेकेंडरी ब्राइट, एंड इन द सिमिलर मैनर अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर यहाँ पर जो है सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, देन फर्स्ट डार्क,
first secondary dark, second dark, second secondary dark. In this manner we will get fringes, right? And then question is this कि what will be intensity distribution curve. यह जो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होगा, तो सीधी सी बात है जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा दैट विल बी वेरी वेरी ब्राइट, उसके बाद डार्क होगा, उसके बाद डार्क होगा, फिर जो फर्स्ट सेकेंडरी बनाएगा उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी सेंट्रल ब्राइट से। क्यों? क्योंकि इसमें फुल होल पार्ट का कंट्रीब्यूशन है, इसमें फुल होल पार्ट का कंट्रीब्यूशन है, इसमें 1/3 पार्ट का, इसमें 1/5 पार्ट का। इट मीन दैट इंटेंसिटी ऑफ कंजिक्यूटिव और सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमा विल डिक्रीज, राइट। तो जरा सा यहाँ जो ग्राफ बनाया गया है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एंगुलर पोजीशन दिखाया गया है और वर्टिकल पोजीशन में इंटेंसिटी। तो पहला डार्क एंगुलर पोजीशन λ/d था, माइनस लेफ्ट साइड में माइनस λ/d, सेकेंड का -2 λ/d, थर्ड डार्क का -3 λ/d, राइट। और इन दोनों के बीच में जो है फर्स्ट डार्क और सेकेंड डार्क के बीच में ये 1 λ/d एंड 2 λ/d, और इसका आया था 1.5, फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट का 1.5 λ/d आया था 3/2 λ/d विच विल बी इक्वल टू 1.5 λ/d, राइट। इट इज योर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नाउ कम ओवर कि व्हाट विल बी साइज क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमम एंड सेकेंडरी मैक्सिमम, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। देन फर्स्ट कम ओवर एंगुलर विड्थ, पहले आइए एंगुलर विड्थ पर, फर्स्ट कम ओवर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो जरा सा देखिए, तो आपने कहा स्क्रीन पर बीच में मेरा जो है सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, फिर उसके बाद डार्क है, फिर इसके बाद डार्क है, राइट। हमने यह कहा था सी दिस वेरी फिगर, here is your slit, here is your first dark in upper side and here is your first dark in lower side। तो इसी के बीच में ना सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, सो एंगुलर पोजीशन फॉर सेंट्रल ब्राइट विल बी दिस, राइट। लेट सपोज फर्स्ट डार्क इज फॉर्मिंग एट एंगुलर पोजिशन, और लेट अस सपोज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क इज थीटा, सो इधर भी थीटा और इधर भी थीटा, सो वी कैन से एंगुलर पोजीशन ऑफ और एंगुलर साइज ऑफ सेंट्रल ब्राइट विल बी 2 थीटा, राइट। एंड वी यूज टू राइट it is angular separation between the directions of first minima on the two sides of the central maximum। सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों साइड में जो मेरा जो है डार्क बन रहा है, उन दोनों डार्क के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन होगा दैट विल बी एंगुलर साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, राइट। डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज थीटा विच इज इक्वल टू λ/d। सो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इसका डबल हो जाएगा, 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 λ/d। देन व्हाट विल बी लीनियर साइज, इसका लीनियर साइज क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, थीटा इक्वल टू L/R। हम लोग यह जानते हैं अगर यह एंगल थीटा है और यह जो है आपका L है और यह R है, देन वी यूज टू राइट थीटा इक्वल टू L/R, सो L विल बी इक्वल टू R इंटू थीटा। इन द सिमिलर मैनर BO will be equal to साइज BO मीन्स हमने साइज दिया है नेम बीटा O विल बी इक्वल टू D इंटू 2 थीटा। D आपका क्या था याद कीजिए, फिगर में आपका जो है D was this distance of a screen from this slit, capital D, right, and it is your L, you can say L। यह जो है आपका यह है आपका यू कैन से L एंड इट इज योर, ये R है D, देन वी यू टू राइट थीटा इक्वल टू L/R, देन L विल बी इक्वल टू R इंटू थीटा।
your r is d and theta is 2 theta, means d into 2 theta equal to 2 lambda by d, means 2 d lambda by d, right? So linear width of the central maximum will be equal to 2 d lambda by d. Now come over, what will be angular width of secondary maxima? Secondary maxima का angular width क्या होगा, right? तो ये क्या होगा जरा सा देखिए तो, दो डार्क के बीच में एक सेकेंडरी मैक्सिमा है, राइट? देन वी यूज टू राइट इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ nth and n+1th मिनिमा। क्यों? क्योंकि जो पहला मैक्सिमा बन रहा है पहला डार्क और दूसरा डार्क के बीच में, पहला मैक्सिमा जो बन रहा है पहला डार्क और दूसरा डार्क के बीच में, तो nth ब्राइट जो है कहाँ बनेगा, तो nth और nth+1th मिनिमम मीन्स डार्क के बीच में। दैट्स वाई वी यूज टू से इट इज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ nth and n+1th मिनिमम, right? Direction of the nth minimum is theta n equal to n lambda by d. Direction of n+1th minimum is equal to theta n+1 is equal to n+1 lambda by d, lambda by d. So difference will be equal to angular width of the nth secondary maximum will be equal to theta n+1 minus theta n, which is equal to n+1 lambda by d minus n lambda by d, which is equal to lambda by d. एंगुलर पोजीशन हो गया nth सेकेंडरी मैक्सिमम का lambda by d, lambda by nth का हो गया lambda by d, एंड एज या nth का डिफरेंस हमने निकाला है which is independent of n, it means that width of each and every secondary maxima will be lambda by d. Then what will be its linear size? Then again use formula theta equal to L by R. So beta equal to आंसर विल बी d lambda by d. यहाँ पर देखिए आया था बीटा 0, हमने इसको लिखा था सेंट्रल मैक्सिमम का, आया था 2 d lambda by d, बट width of secondary maxima, each and every secondary maxima is d lambda by d, which is half of width of secondary central maxima, right? So we can write beta 0 equal to 2 beta, means central maximum of diffraction pattern is twice as wide as any secondary maximum, right? It means that, and now see here what we are observing here, beta is inversely proportional to slit width. Beta is inversely proportional to slit width, right? Here beta is inversely proportional to slit width. So we can say width of a secondary maximum is inversely proportional to slit width. It means that as the slit width increases, secondary maxima gets narrower. जैसे जैसे स्लिट विड्थ घटता जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा और नैरो होता जाएगा, राइट? सॉरी, जैसे जैसे स्लिट विड्थ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्लिट विड्थ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्लिट विड्थ बढ़ता जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा और छोटा होता जाएगा। मीन्स स्लिट विड्थ और बड़ा कीजिए, सेकेंडरी मैक्सिमा और छोटा, और बड़ा और छोटा, और बड़ा और छोटा। ये तो लगता है कि जब बहुत बड़ा हो जाएगा स्लिट विड्थ तो सेकेंडरी मैक्सिमा खत्म, केवल सेंट्रल मैक्सिमम एंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, राइट? ओके माय डियर स्टूडेंट।